कोई मुझे पानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सदफ, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, सिर्फ मेरे को एक 10 सेकंड देना सदफ। आप آپ سے सलाम بات भाभी کرتا जी। ہوں، پہلے ان کو پانی چاہیے. جی جی بالکل موسٹ ویلکم. اور پھر گیتا دیوی آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہو؟ جی میں الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. آپ میں کیسے؟ 4-5 سیکنڈ میں ہی آ گیا. الحمد للہ. اچھا یہ جو آپ لوگ واقعہ دکھا رہے ہو نا صحیح ہے، اس جی مولانا کا جسم کا آپ نے لگایا نا، انہوں نے لاسٹ میں کیا بولا کہ یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے معاذ اللہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے آپ لگائیں، اگر آپ کو یہ واقعہ سننا ہے نا تو ان کا لگائیں، دعوت اسلامی کا مولانا الیاس قادری صاحب کا لگا دیں یا پھر ان کا لگا دیں یار وہ تو تاکہ بہت مستفید. فیک ہے، وہ تو بہت جھوٹا ہے. نہیں نہیں، ان یہی لوگ نے بھی نہیں بولا جھوٹے ہے. نہیں ہیں، ایک جھوٹے منٹ نہیں ایک ہیں منٹ وہ، میں صدف بتا رہی ہوں. صدف گیتا دیوی میری بات سنیں. جی 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 سر. ارے گیتا دیوی. ارے ظاہر سی یار نام وہی لیں گے نا ہم. اب بعض انہیں نام لگا لو گے، ساحل یا حضرت عائشہ معاذ اللہ یا آدم، تو آپ لوگ یہ پاک تھوڑی ہو جاؤ گے. آپ نے تو وہی رہنا ہے جو آپ ہو. یہ تو قرآن فرما رہے ہیں نا کہ آپ لوگ بھیس بدل کے بیٹھو گے اور لوگوں کو گمراہ کرو گے اور کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ اندر سے دل سے آپ کافر ہو گے. تو آپ لوگ وہی ہو جن کا قرآن میں سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا. جی سائل. اچھا جی آپ نے اچھا عمرہ کیا ہے؟ صدف. جی ہاں حج یا جی. عمرہ کیا ہے؟ جی گیتا بول رہے ہیں، کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا آپ نے حج یا عمرہ کیا ہے؟ جی ریسنٹلی میں ابھی مارچ میں کر کے آئی ہوں عمرہ الحمد للہ. عمرہ 3 اپریل لیا کو تھا آپ واپس نے آئی بھی؟ ہوں. کیا چمی لی کیا؟ تھی حضرت اسود کی. نہیں وہ رش تھا تو یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکی ہے. باقی حجر اسود کا بچ گئی. واقعہ ایسا ہے، نہیں نہیں کیوں بچ گئے، انشاءاللہ اگلے سال جائیں گے یا جب بھی بچ پھر کہ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارے جب اللہ نے لیکن وہ بلایا. پتھر. صدف صدف میری بات سنو. جی جی. وہ جو حجر اسود تم جا کے جو چنی لینے والی تھی اور اچھا ہوا نہیں لی، نہیں تو میں نہیں کچھ کر پاتا آگے. وہ نہیں ساحل آپ پتھر وہ واقعہ سنا رہے ہو جو فیک مولانا ہے نا. آپ مستند ایک کسی کا مولانا دکھا، ان نے کتابوں میں لکھا. مولانا الیاس صدف قادری کا صدف دکھا دیں واقعہ ان کی زبان میں، صدف یا مصطفی ثاقب مصطفی کا دکھائے نا، صدف وہ بڑے اچھا علماء کا آپ کو یہ دکھائے. معلوم ہے. صدف آپ کو یہ جی معلوم ہے کہ حجر اسود چوری ہوا تھا. جی یہ مجھے پتا ہے، لیکن آگے کی کہانی فیک آپ نے ٹکڑے. سنائی ہے نا. اگر آپ جی صدف میں اس کے بتا دیتی ہوں، ٹکڑے. میں صرف 2 منٹ دیں گے آپ، میں اس پہ ہی بات کروں گی جو ٹاپک ہے. اور ٹھیک ہے بولو. الحمدللہ مجھے معلوم ہے، میں اسی ٹاپک پہ آئی ہوں. ٹھیک ہے 22 سال کے لیے یہ گیا تھا، یہ چوری کیا گیا تھا. بحرین کا بادشاہ تھا وہ لے گیا تھا جب اس نے اس پہ مکہ پہ حملہ کیا تھا نا. تو جب یہاں سے لوٹ مار کر کے گیا تھا نا تو اس میں وہ حجر اسود نکال کے لے گیا تھا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ 22 سال تک بغیر کعبہ کریم پہ حجر اسود نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جب جن اونٹوں پہ اس کو لے جایا گیا تھا وہ بڑا اور مطلب کافی الحمدللہ بھاری پتھر تھا، تو وہ اونٹنیاں یا اونٹ جو تھے 40 یعنی مرتے گئے تھے. خیر جس طریقے سے وہ بحرین پہنچا وہاں کے بادشاہ نے اس کو رکھا. پھر جب یہاں کا سعودی کا بادشاہ آیا تو اس نے ان کو دینار وغیرہ اس کا ریال جو بھی تھا اس زمانے میں اس کا دیا نذرانہ اور مانگا. تو اس بادشاہ نے ایگری کیا تھا، بحرین کے بادشاہ نے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس بادشاہ نے ایک فیک پتھر لا کے دیا پہلا، اور بالکل سیم وہی بنا کے، اور اس کو بولا یہ حجر اسود ہے. تو اس بادشاہ نے کہا یہ ہمارا حجر اسود اگر ہوگا تو ہم اس کو پانی میں ڈال کے چیک کریں گے، اگر یہ ریئل حجر اسود ہوگا پانی میں یہ ڈوبے گا نہیں، اور اس کو آگ سے جلائیں گے اس پہ آگ اثر نہیں کرے گی. تو جب اس پتھر کو آگ سے جلایا گیا تو وہ پگھل گیا نا، جل گیا، وہ کالا ہو گیا تھا. تو اس نے کہا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے. پھر ایسے ہی بہروپیوں نے دوسرا حجر اسود کے نام پہ ایک فیک پتھر دیا، اس کا بھی انہوں نے پانی میں ڈالا تو وہ نا ڈوب گیا تھا وہ پتھر. پھر تیسرا کہ نا جب تیسری بار آیا جب اس کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوبا نہیں حجر اسود مبارک، اور جب اس کو جلایا گیا تو وہ جلا نہیں. پھر وہ لوگ وہاں سے نا ایک کہتے ہیں کہ کمزور سی اونٹنی پہ رکھ کے اس کو لائے گئے، اور وہ اونٹنی میں اللہ کریم نے اتنی طاقت دی تھی بے حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوڑتی ہوئی کعبہ کریم پہ پہنچ گئی تھی اپنی منزل پہ. اور وہ حجر اسود جو آگے کی کہانی ہے مولانا صاحب یا وہ بھی اللہ معاف کرے جعلی یہ بتا رہے ہیں کہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس کے 6 مزید ٹکڑے کیے گئے، یہ بالکل جھوٹی کہانی ہے. حجر اسود
نہ ٹوٹ سکتا تھا، نہ ڈوب سکتا، نہ وہ جل سکتا ہے. یہ کہانی فیک ہے. اور اگر کسی کو ریفرنسز چاہیے تو مولانا الیاس قادری حضرت صاحب ان کے نکالیں، ثاقب مصطفی کی زبان میں واقعہ نکالیں، ٹھیک ہے، یا طارق جمیل صاحب کے، تو آپ کو صحیح رہنمائی ہوگی. باقی یہ جو جھوٹے علماء اس طرح کے بیٹھے فیک، جو اینڈ میں جاتے جاتے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے یہ بات ابھی تک ہمارے آقا کہ یہ کس سے ٹکڑے کیے گئے، یہ بات جھوٹ ہے. آگے سے جھوٹی کہانی سنائی ہے. باقی آگے انہوں نے پورا قصہ صحیح سنایا تھا، لاسٹ میں انہوں نے ڈنڈی مار دی. جی بسم اللہ. وسلام نے بہت سٹی ہی اجاڑ دیتے تھے، تو کرامتا کے سردار اور اس قتل عام کی کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وہ چاہتے تھے وہ پرنالہ موجود اور مقام کے اس پر چڑھے. کام ابراہیم کو محفوظ آ دیا تھا، مگر 14 ذوالحجہ جعفر بن حلقات ہجر کے مقام تک وہ لے گئے. حجر اسود انہی کے پاس رہا. ان سے بار بار اسلامی حکومتوں نے جو زمانے سرخ دیناروں کی پیشکش، فاطمیوں کی مداخلت زور پکڑ گیا. بھی ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ واپس تیار ہو جاؤ، وہ مل گیا ہے. اب اسے الگ کرنا ممکن نہیں. ہمارے پاس حجر اسود کی کوئی نشانی نہیں ہے. اب پتھروں کو آگ میں ڈال، حجر اسود نہیں پھٹے گا نہیں. اس طرح اور مقبولیت کا لوح ڈال کے اور پھر کعبہ یار آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آ رہی ہے. جی آ رہی ہے، آ رہی ہے. ہاں صدف جی، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو تمہارے بریلوی علماء جو چالاکی کرتے ہیں، تو ایک یہ بریلوی جو ہے نا، یہ کیا نام ہے یار اس کا؟ مولانا الیاس قادری صاحب. جی جی نہیں، ممبئی کا ایک بریلوی ہے، اس کا بھی حجر اسود کے اوپر ایڈم نے ایک بار ویڈیو بتایا تھا، اور اس نے بھی بولا تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور اس پہ ٹوائلٹ کیا. مولانا فاروق رضوی. نہیں، یہ ایک جھوٹ منٹ ہے. میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں. بالکل ارے جھوٹ سب معلوم پڑے گا، رک جاؤ. فاروق رضوی. تو میں نے جو آپ کو ریفرنس دیا مولانا الیاس قادری صاحب، جن کا بھی آپ نہیں، وہ لوگ چالاک ہے نا. تمہارے مولانا الیاس صاحب جو ہے یہ چالاکی وہ کر رہے ہیں. یار صدف جی، آپ جب نہیں بولے گی نا تو آپ میوٹ کر لیں. آپ نے اپنا اتنا پیسہ جو ہے وہاں پہ برباد کر دیا حج وج جانے میں. ایک اچھا مائک، آپ یہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہیڈ فون لے لیتی تو آج ہمارے سر درد نہیں دیتا. اچھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ کو میں گدھے انسان کو ذرا بلاک کر دوں. کال کر کر کے پریشان کر رہا ہے. ایک منٹ، بلاک. ہاں، آپ کے جو بریلوی علماء ہے یہ چالاکی ہے. یہ آدھا قصہ بتا کر تم لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. ہم نے آپ کو حوالہ دیا کتاب سے، جہاں سے تھوڑا تھوڑا قصہ جو اٹھایا ہے نا تمہارے بریلوی علماء نے، انہوں نے چالاکی سے پوری بات نہیں بتائی. کیونکہ اگر پوری بات بتاتے تو تم جیسے لوگوں کے، صدف جیسے لوگوں کے ایمان جو ہے ہل جاتے. وہ تمہارے ایمان کو ہلانا نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے پوری بات نہیں بتائی. مجھے یہ بتاؤ، ابھی اس کو لائن وائز جاتے ہیں. صدف، کیا تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ جب پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے خانہ کعبہ پہ ابراہا جو ہے وہ لشکر لے کے آیا تھا اس پہ حملہ کرنے کے لیے؟ کیا تم کو پتا ہے؟ یہ میری نالج میں نہیں ہے، لیکن آپ نے 365 بدھ بولے تھے نا کہ کعبے میں تھے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی. آپ نے بولا ہے تھا. سورہ فیل نہیں پڑھے آپ نے کبھی؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والی قوم کا ہم نے کیا حال کیا؟ ٹھیک ہے، وہ ہاتھی والی قوم تھی. اور دوسری بات سنو. ارے تو وہ کس لیے آئی تھی؟ جی آپ نے قرآن میں یہ نہیں سنا کہ ان کے اوپر ایسے پرندے چھوڑے گئے تھے جو باریک باریک کنکر مار رہے تھے، اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ کنکروں سے موتیں ہوئی ہیں ان کی. آپ کو پتہ ہے کافروں کی موت جو باریک کنکر سے ہوئی ہے. ایگزیکٹلی، تھینک یو. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب وہاں پہ ابراہا حملہ کرنے آ رہا تھا تب تو کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اللہ نے تب اس کی حفاظت کی ابابیل کے ذریعے سے. یہاں پہ جب ابو طاہر حملہ کرنے آیا ہے تبھی تو مکہ میں کوئی بت تھا نہیں،
और वहां पे तो अल्लाह के घर में आए थे हाजी लोग, 30,000 हाजियों को उसने मरवा दिया वहां पे, वहां की औरतों को गुलाम बनाया और उनके साथ डिंगी डिंगी की, सब कुछ किया। हजरे अस्वद वहां से लूट के लेके गया। आपका अल्लाह सो रहे थे सदफ जी? माज़अल्लाह साहिल साहब, आप ये बयान ना अपनी मिलावट ना करें। वो हजरत अब्दुल मैं सवाल कर मुत्तलिब रहा थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुबारक। ये बात पता है जिस हाँ। वक्त मक्का में ये हमला हुआ था ना, जो सूरह फील उतरी है, हाँ मैं पता है? मान गया, मैं अब्दुल अभी मुत्तलिब पूछा वहां तब के तो बादशाह थे, बात सुनो, सरदार थे। तो जब उनके हाथ से अल्लाह ताला से उन्होंने मदद मांगी थी कि या अल्लाह हम कमजोर मतलब हैं इस वक्त, तो अल्लाह ने मदद की थी और गैब से वो परिंदे भेजे थे जिनकी चोंचों में बारीक बारीक अरे पत्थर मैं थे। मान गया और सदफ, मैं सारी मान बात तो गया, जज़ाकल्लाह, मैं मान नहीं, सारी गया। बात मेरा तो अल्लाह ने उन बुतों की हिफाजत नहीं की थी, अपने घर की हिफाजत की थी। और हजरत घर में अब्दुल बुत तो थे मुत्तलिब ना। के सदके में दुआ कबूल की थी। और आप बात मिनट, कर रहे एक हो मिनट, बुतों एक की मिनट। हिफाजत की, तो वो बुतों को एक तुड़वाना मिनट। था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक सदफ से। जी एक मिनट, अभी थोड़ा पानी पी लो। आपने कहा कि अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की, सही बात है ना? बेशक बेशक। अच्छा, जब अबू ताहिर जो है वो काबा पे हमला करता है, वहां के 30,000 हाजियों को मार देता है, जमजम पानी में उनकी लाशों को बहाता है, और उसके शहीद बाद शहीद मक्के हुए थे, का, हाजी मरते नहीं है, शहीद हुए थे जी। हाँ शहीद हुए, कुछ भी हुए, उनकी लाशों को जमजम के पानी में डाला, वहां की उनकी औरतों को माले गनीमत बनाकर उनको साथ डिंगी डिंगी किया, और वहां के गिलाफ को फाड़ा, वहां से हजरे अस्वद को उठा के लेके गया। ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह वहां अपने घर की हिफाजत क्यों नहीं किया? क्या इस वक्त वो सो रहा था अल्लाह, या क्या कर रहे थे अल्लाह नहीं, मियां? अल्लाह ताला माज़अल्लाह ना सोता है, ना उसको नींद है, ना ऊँग। मेरी बात सुनो, ठीक है? तो अल्लाह हिफाजत ताला क्यों को नहीं किया अल्लाह ने? अगर अल्लाह ताला मुकम्मल बात सुनो ना, अगर मुकम्मल अल्लाह ताला अमन कर देगा तो उसका और शैतान का वादा कैसे पूरा होगा? शैतान ने अल्लाह वादा? से वादा किया था ना, अल्लाह ने शैतान को अथॉरिटी दी है, ताकत दी है। क्या और आप authority? उस दिन भी मैंने मौतबाना लोगों को मारने की authority? देखो, नहीं, शैतान को खुली छूट दी है कि मतलब तुम जो हो अल्लाह जो है, करो, एक कि मेरे मिनट, नेक लोगों को ना भटकेंगे। सदफ मैं तुमको म्यूट कर रहा हूं, पहले आर्गुमेंट अपना सेट हो जाए। अभी तुमने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि जब वहां पे अल्लाह हिफाजत, अपने घर की हिफाजत कर रहा था। मेरा सवाल ये है कि अब अल्लाह अपने घर की हिफाजत क्यों नहीं कर रहा था? मतलब अल्लाह भी तो नूर के ऊपर चलता आप है। शायद समझ के नहीं समझ रहे ना, आप समझ के नहीं समझ चाह रहे बात। आप बात यानी जान के नजरअंदाज कर रहे हो ना, मेरी बात को घुमाओ नहीं। जो मैं बात पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रही हूँ, समझने की कोशिश करो तो इंशाल्लाह समझोगे। अल्लाह बेहतर समझता है कि कब किसको कितनी छूट देनी है, और अल्लाह करीम ये कुरान मतलब पाक में मूडी है फरमाता क्या? है। नहीं, मूडी की मूडी बात ही अल्लाह। नहीं है ना यार, ये मूड हो गया ना कि एक छूट दी है ना, एक मिनट, एक इब्लीस मिनट, को अथॉरिटी दी है ना, अल्लाह को क्या बेहतर पता है ना, authority दी है? उसके मामलात अल्लाह को बेहतर पता है ना। अब ये थोड़ी ना कि अल्लाह ने अगर क्या उस वक्त जो अथॉरिटी हमने दी है? आपको पूरा की जवाब 30,000, एक मिनट, एक ताकत दी है उसको। जी। सदफ सदफ, मतलब उन हाजियों को अल्लाह ही मरवा रहा था। शहीद शहीद क्या, शहीद का बड़ा रुतबा है। अगर खुदा की कसम मुझे तुम्हें कत्ल करके शहीद और होने का उनको माले गनीमत भी अल्लाह ही बनवा रहा था। एक मिनट, मौका मिले, मैं तुम्हें उनकी- कत्ल करूंगी। मैं ऑन दी ब्रॉड बात कहती हूँ। अगर तुम्हारी क्या बोल रहे गर्दन हो? उड़ा के मुझे शहादत मिले तो मैं कबूल करती हूँ। अगर साहिल तुम्हें, तुम काफिर हो ना, और तुम गुस्ताखी करते हो, तुम गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और ये भी रिकॉर्ड करो। आगे भी तुम लोग ने मेरी वीडियो डाली है ना गालियों वाली, अपनी गालियां तो तुम लोग भूल गए थे, सिर्फ मेरे ही क्लिप्स लिए हैं, तो चलो खैर वो भी मुश्किल नहीं है। मैं कसम खाती हूँ कि अगर मुझे जिंदगी में मौका मिला ना किसी काफिर को मार के शहीद होने का, तो मैं उड़ा दूंगी। मैं इसमें देर नहीं करूंगी। जाएंगे तो मेरी जाएंगे। गर्दन मुड़ाओगे? तुम्हारी गर्दन भी मौका मिले तो इंशाल्लाह, अगर तुम इसी तरीके से साहिल गुस्ताखी करते रहे ना, और जिस दिन पाकिस्तान अरे आ गए और मेरे गुस्ताखी सामने आ कहाँ किया गए, लेकिन? तो तुम्हारा कत्ल मेरे ही हाथ से इंशाल्लाह। लेकिन मैं तुम्हारा होने वाला शौहर था उस दिन, आज तुम साहिल, साहिल। भाभी की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है, जो ऐसा कमेंट्स बिल्कुल में भी बोल नहीं रहे है। हैं ना, आप तो भाभी एक मुसलमान की भाभी शादी तुम्हारा में हो। भाई खतरे में है। सब बोल रहे हैं भाभी। गीता देवी मैं सच कह रही हूँ, तुम भी मरोगी गीता देवी, अगर तुम मेरे सामने आई ना, तुम भी मरोगी। अगर तुम जिस तरह की गुस्ताखी करती हो, तुम वाजिबुल कत्ल हो, तुम लोग वाजिबुल कत्ल हो। अच्छा एक मिनट, सदफ सदफ, गुस्सा थोड़ा ठंडा करो। अभी अगर तुम मेरे सामने होती ना तो मैं तुमको तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर देता, लेकिन अब तुम मेरे सामने नहीं हो। सदफ मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुमने हाजियों को
शहीद मान लिया, चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए हाजी शहीद, जी। लेकिन जी। जो अबू ताहिर ने वहां की औरतों को, मोमिन औरतों को माले गनीमत बनाया, कैदी बनाया, उनके साथ डिंगी डिंगी की, फिर तुमको ये भी मानना पड़ेगा कि वो अल्लाह ही करवा रहा था। वो सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है, बेशक 100% करा रहा- अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह ताला ने देखो अल्लाह करा रहा था ना। करारा नहीं बोलो, करारा नहीं बोलो, ये बोलो कि वो सब अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था और अल्लाह ने ऐसा ही पसंद किया था उनके लिए तो शहादत। अल्लाह ने और पसंद किया। शैतान ने जो हाय किया, हाय उसके हाय, लिए छूट। सदफ सदफ जी, सदफ सदफ सदफ, जी, जी। अल्लाह ने ये पसंद किया कि उसके घर में जो औरतें, अरे सदफ गायब, आ गई सदफ। सदफ आप ये कह रही है कि अल्लाह ने ये पसंद फरमाया और लिखा कि उसके घर में जो औरतें हज करने के लिए आ रही हैं उसको एक अबू ताहिर बंदा उनको माले गनीमत बनाएगा, अपने लोगों में बांटेगा और उनके साथ डिंगी डिंगी करेगा। अल्लाह ने भाई, पसंद फरमाया था, लिखा था, इस वजह से उनके साथ हुआ ना। साहिल मेरी बात सुनो, वैसे तो आप लोग कायल नहीं होगे क्योंकि आपके दिलों पे कुफर है, ठीक है, ईमान नहीं है आप लोगों के अंदर, तो आप नहीं मानोगे। आपने वही उतना ही समझना है जितना आप लोग समझना चाहते हो, सही है। आप कभी भी सच को सच की निगाह से नहीं देखना पसंद करते, आपने वही समझना है, वही अहादीस निकाल के दिखानी है, वही चीजें दिखानी है। मैं वीडियो पे मुसलमानों को या हिंदुओं को, जो भी भाई बहन है, कि जो आप लोग समझना चाहते हो खुद समझते हो और समझाना चाहते हो। मेन पॉइंट ये है। सदफ मेरी बात सुनो ना। मर्जी से होता है। अच्छा प्यारी सदफ, थोड़ा चुप हो जाओ, मुझे ये बताओ, अभी आपने ये बोला कि नहीं बोला कि अल्लाह ने पसंद किया था या अल्लाह ने लिखा था कि उन औरतों के बेशक अल्लाह ने साथ, ऐसा ही लिखा था। मतलब अल्लाह ने लिखा करके उन औरतों का रेप हुआ ना? क्या करके? अल्लाह ने उनकी नसीब में लिखा था कि जी, जी। अबू ताहिर करामती या अबू ताहिर जन्नाबी के जरिए से उनका रेप हो, इस वजह से हुआ ना? तो हजरे अस्वद चोरी करवाना था ना, मींस अल्लाह की इजाजत थी तो वो लेके चोरी गया, करवाने मतलब थी कि वो खोल भी अल्लाह सकता, ही, निकाल भी सकता था। एक मिनट प्यारी सदफ थोड़ा रुक जाओ, मतलब अल्लाह को हजरे अस्वद अल्लाह को ही चोरी करवाना था, इस वजह से उसने अपने ही घर में आए हुए हाजियों को बलि का या क्या कहते हैं उसको कुर्बानी का बकरा बनाया और उनका रेप करवाया, क्योंकि अल्लाह चाह रहा था, अल्लाह ने वैसा लिखा हुआ था। अभी प्यारी सदफ आपने बोला ये बात, मैं आपकी बात को रिपीट कर अच्छे रहा हूँ। रखें साहिल, आपके सामने एक मुसलमान मोमिना है, ये ध्यान रखें, ठीक है। वर्ड अच्छे बोलें, क्योंकि हमने अभी तक आपके किसी मैंने क्या भगवान गलत को बोला? और उसको गंदी गंदी गालियां नहीं दी हैं। आप अरे लोग लेकिन क्या क्या मैंने बोल क्या रहे गलत हैं बोला? के लिए? सदफ आप प्यारी बलात्कारी या सदफ, अस्तगफुरुल्लाह इस तरह के जुमले नहीं बोला करो, ये गलत बात है अरे लेकिन तुमने ये बात बोली अभी, तुमने क्या, तुमने यार। नहीं बोला? अल्लाह की एक मर्जी मिनट, से होता है दुनिया में सब कुछ, पत्ता भी हिलता है, सांस भी लेते हैं, निवाला भी अल्लाह की मर्जी। अगर साहिल तुम एक निवाला तो नहीं ये अलग से लिखा हुआ था ना अल्लाह ने? अल्लाह की मर्जी ना हो, बेशक लिखा हुआ था। और अल्लाह ने मतलब- ऐसी चीज पसंद की, शैतान को अल्लाह ने अथॉरिटी दी है, ताकत दी है, उसको सदफ, बहुत सारी चीजों में ऐसा किया है। सदफ, अगर सदफ, अल्लाह अपने होने सदफ, का प्रूफ दे देगा आप सबको, मेरी बात सुनो, तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाएगी ना साहिल, सदफ। जंग ही खत्म हो जाएगी। अच्छा जी। सुनो प्यारी सदफ, मुझे एक बात बताओ, अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में ये लिखा होता कि तुम उस, जैसे अभी तुम गई थी हज के लिए या उम्रा के लिए, उम्रा अगर करके आए हम अल्लाह एक ने महीने। तुम्हारी, म्यूट कर लो, मेरी बात कंप्लीट होने दो। ओके ओके। थैंक यू सदफ, अगर अल्लाह ने तुम्हारी, क्योंकि तुमने कहा अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा है वही होता है, ठीक है, ये बात सही है, एक बार कंफर्मेशन दो, अल्लाह ने आपकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, इस पे कंफर्मेशन दो पहले सदफ। हाँ जी यही है एग्जैक्टली, जो रब ने Thank लिखा है you. वही होना है, पत्थर पे लकीर है। अच्छा थैंक यू, अभी म्यूट कर लो, अभी मैं जरा हथियार लेके आता हूं, कहाँ है स्क्रीन, विंडो। सदफ ने अभी कहा, आप सबने सुना, अल्लाह ने जो लिख दिया वही होता है, पत्थर की लकीर होती है ये बात, ठीक है। सदफ, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में
लिख दिया होता कि तुम उस दौर में करामती वाली दौर में हज के लिए जाती और अल्लाह ने लिखा होता तुम्हारी किस्मत में कि अबू ताहिर अल जन्नाबी और उसकी फौज तुम्हारे हज करने के दौरान हमला करते और तुमको माले गनीमत बना लेते और तुम्हारे साथ डिंगी डिंगी करते, क्या ऐसे अल्लाह को तुम अच्छा अल्लाह या अच्छा खुदा मानते हो जो तुम्हारी नसीब में रेप लिखा हो? जी सदफ, अनम्यूट करके इसका जवाब दो, अच्छे से पढ़ लो पहले। जी मैंने पढ़ना नहीं है, मैंने सुन लिया जो आपने लिखा है। अगर मैं उस दौर में पैदा होती और मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा ही लिखा होता जैसा कि आप बयान कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे साथ शहादत मिलती मुझे और मेरे साथ शहादत नहीं माले गनीमत बनती आप, शहादत नहीं माले गनीमत बनती आप, नहीं माल गनीमत ना। तो अगर मेरे साथ कोई हादसा होता जिस्मानी या जो भी, और उसके बाद मेरा अल्लाह की राह में मैं चली जाती, मुझे मार दिया जाता या जो भी, सही है? मार दिया नहीं जाता, आपको बेच दिया जाता मालिका। एक मिनट देखो, फर्ज कर लेते हैं अल्लाह के हुक्म से, सब कुछ हम फर्ज कर लेते हैं कि ऐसा हमारी किस्मत में लिखा होता, तब भी मैं अपने ही रब की इबादत करूंगी, अपने ही रब को अल्लाह समझूंगी, उस अल्लाह को जिसको मैंने बगैर देखे प्यार किया है, उस रब तो ये एक अच्छा खुदा है गवाही देती जो तुम्हारा रेप करवा रहा है, वो एक अच्छा खुदा है? नहीं, वो आजमाइश है हमारी, ठीक है, वो रेप करवाना आजमाइश है, लेकिन हुक्म खुदाबंदी होता है। एक मिनट वाले ना शैतान है, अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, वो शैतान हम पे भारी होता है। ये कुरान में है, ये कुरान में है बिइज़्निल्लाह। मैं म्यूट कर रहा हूं। आपने कहा रेप करवाना ये एक आजमाइश है, रेप करवाना आजमाइश है सदफ? ऐसे अल्लाह को तुम एक अच्छा खुदा मानती हो सदफ? ऐसे खुदा को नहीं, खुदा एक है, वादहुल्लाह शरीक है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके पैगंबर और रसूल है। रेप करवाने वाले खुदा को तो यार तो सदफ, अब देखो रेप नहीं ना, आप लोगों की निगाह में वो हुआ है ना माले गनीमत। तो ये तो देखो मैंने बोला ना, इबलीस और ईमान की जंग है। अव्वल दिन से बताया कि खुदा ने इबलीस को छूट दिया है। अगर इबलीस को इतनी ताकत ना दी जाए तो फिर वो खुदा तो नहीं है ना मेरा रब। अच्छा उसने सदफ, तो देखो शुक्र दिया है। सदफ सदफ हो गई। अभी मेरे को एक बात बताओ सदफ, सदफ अगर तुम खुदा होती, क्या तुम सुम्मा माज़ल्लाह, देखो मेरे साथ सही वैसी बातें करोगे मैं चली जाती हूँ। अगर मुझे भेजना है तो वैसे ही कह दो कि चली जाओ। नहीं नहीं सदफ, मैं कभी खुदा नहीं हो सकती और दुनिया का कोई इंसान कोई जात खुदा नहीं हो सकती। सदफ मेरा हुक्म है और एक ही रहेगी। सदफ मेरा हुक्म है, तुम नहीं जाओगी। और अगर कुरान पे तुम्हारा ईमान है तो कुरान ये कहता है कि तुम होने वाले शौहर की भी नाफरमानी नहीं कर सकती। तो मेरा हुक्म है कि तुम नहीं जाओगी। देखें अच्छा। ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, आप काफर हैं और काफर ही मरना है आपने, मैंने अंदाजा लगा लिया। ठीक है, तो एक बाद में मैं कबूल कर लूंगा लिए नहीं लिखी गई। सदफ, बाद में कबूल कर लूंगा, टेंशन मत लो। अभी आपको कुरान के लिहाज से आपको मेरी बात माननी है, आप नहीं जा रही है किधर। अच्छा सदफ, तो मेरा सवाल ये है, मतलब मान लो ऐसा हो नहीं तुम, अगर तुम खुदा होती क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती? अच्छा यही सवाल अगर मुझसे पूछोगे, ये कि तुम खुदा होती, इसके अलावा कुछ भी बोलो, लेकिन ये नहीं लिखना मैं जा रही हूँ, मैं लीव कर रही हूँ, मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर रही हूँ। ये गलत है। फरिश्ते आप ईमान से नहीं खेल सकते। मेरा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कट्टर है, बहुत बड़ा। फरिश्ते लानत भेजेंगे आप पे, फरिश्ते लानत भेजेंगे आप पे, फरिश्ते सलाम करेंगे मेरी उस पे ना। इन्नल्लाह मा'अस-साबिरीन, सही है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।
ये सब नहीं लिखो। अच्छा, रुको। अगर तुम होते, अगर की कंडीशन नहीं अच्छा कर मैं सकते होता, आप। मैं होता। अच्छा अच्छा हम ही अच्छा, मान एक माजल्ला तुम भी नहीं हो म्यूट सकते। करो, म्यूट करो, म्यूट करो। साहिल सर मुझे ले लो एज एग्जांपल, कोई टेंशन। हाँ मैं सबको लेता हूँ, तुमको भी लूंगा, हजरत आयशा को लूंगा, एग्जांपल ले लो, सबको मेरी ले लो, लूंगा। कोई बात हाँ नहीं। चलो सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सदफ देखो, तुम खुदा बनने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन हम सब अगर खुदा होते, या हम ऑडियंस में जो अभी 6,500 लोग देख रहे हैं, उनसे भी मैं ये सवाल करूंगा। अगर सबसे पहले मैं अपने आप को ले लेता हूँ, नहीं सबसे पहले हकूक सीकर को। अगर हकूक सीकर खुदा, अरे भाई का फीमेल को कहा ले रहे हो, मेल को ले ना, मैं बैठा हूँ। हमारे मजहब में मेल फीमेल सब खुदा हो सकते हैं। हमारा अच्छा मजहब है। अगर हकूक सीकर खुदा होती या खुद ही होती, एक खुद ही होती है, गंदा लफ्ज लग रहा है खुदा। सॉरी, मेरे ख्याल से इसी वजह से लेडी को खुदा नहीं बनाया है। अल्ली होती। अच्छा, अगर हकूक सीकर खुदा होती, जी। तो क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती? हकूक सीकर ऐसी खुदा होने से मैं कुछ भी ना होना बेहतर मानती हूँ। आत्महत्या कर लेती आप? हाँ, खुदा आत्महत्या कर लेता। मेरा वजूद ही ना होता। पहली मतलब बात नहीं- ये सिस्टर, नहीं लिखते। आप लोग यार, खुदा हो ही नहीं सदफ, सकते। खुदा को एक मिनट मौत रुको आती, ना तुम सबको सदफ। मौत सदफ रुको, मैं तुमको मौका दूंगा, रुक जाओ। नहीं, आप सबको तुमने मौत बोला ना, आती है। आप ये नहीं बोलो कि हम सब खुदा होते हैं, हमें गुनाहगार कर रहे हो ना बिठा। अरे सदफ तुमने बोला तुम्हारे ऊपर मत लो, मैंने हटा दिया तुम्हारा नाम। हाँ, और ये प्यार और मोहब्बत है तुमसे जो मैंने हटा दिया हूँ। थोड़ा रुक जा, बाकियों को देखते हैं कि बाकी लोग आपके खुदा से अच्छे हैं या नहीं है। अच्छा अभी ये हो गया। हुकूक सीकर तो बोल दिया कि मैं किसी के नसीब में रेप नहीं लिखती। अच्छा, अगर अब्दुल्ला मेरानी साहब खुदा होते, क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखते? अब्दुल्ला मेरानी साहब। भाई जो हकूक सीकर ने जवाब दिया है भाई, मेरा सेम जवाब है। अरे कोई तो अलग दे दो यार, नहीं लिखते। थैंक यू, आप अच्छे खुदा बनने की लिस्ट में आ चुकी हैं हकूक सीकर, और इसी तरीके से मेरानी साहब भी शॉर्ट लिस्टेड है अच्छे खुदा बनने के लिस्ट में। अच्छा, अभी हजरत आयशा, जी जी हाँ आप खुदा होती, जी। हाँ तो क्या तुम किसी की नसीब में रेप लिखती? बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो खुदा ऐसे काम करता है उसके लिए उस पे तो मैं लानत भेजती हूँ, जो ऐसी चीजों को कहता है कि हाँ होने दो, ये आजमाइश है, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करती। माशाअल्लाह। मैं कुछ ऐड करूंगी इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने हजरत आयशा। और ऐसे खुदा से ना, एक जैसे साहिल साहब ने कहा अभी कि मैं अगर ऐसा खुदा होता तो नहीं करता, तो मैं कहती हूँ एक इंसान, ये इंसान हमें उस खुदा से ज्यादा प्यारा हुआ। बिल्कुल सही। क्या बात है। तो इधर तो सब लोग, बल्कि हमारी ऑडियंस से भी मैं सवाल कर लेता हूं, भाई लोग, अगर आप खुदा होते और आप किसी की नसीब लिख रहे होते, तो क्या किसी फीमेल की नसीब में आप उसका रेप लिखते? जवाब, ताकि हम सदफ को बताएं कि देखो सदफ, अच्छे लोग ऐसे होते हैं, ये देखो। नो, कोई नहीं लिखता। नेवर, नो, नहीं लिखते, नहीं। ये देख लो सदफ, देख रही हो सदफ, प्यारी सदफ? सदफ, अच्छा सदफ। सारे क्वेश्चन आपने काफिरों से किए, ठीक है। सारे काफिर बैठे हैं, हिंदू, कोई गीता देवी बैठी है, कोई सुनील दत्त बैठा है, सब कोई आगे इंसान बैठा है, बैठे कोई और बैठा है, हैं ठीक है। सदफ,
एक भी ये मुस्लिम नहीं फर्क है। होता है। एक मिनट रुको सदफ, मुस्लिम को लो ना मुसलमान नीचे से, में, उनको क्यों खुदे मार देते हो? अच्छा को मुस्लिम बिठाओ ना मुस्लिम, मुस्लिम धर्म को। अच्छा रुक जाओ, जितने मुसलमान है, ये बोल रही है कि सब हिंदू और काफिर लोग जो है नहीं लिख रहे। अभी जितने मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, स्ट्रीम को देख रहे हैं, आप अगर खुदा होते तो किसी फीमेल के लिए, ये देखो आफिया तो मोमिन है, ये देखो नहीं आफिया भी बोल रही है नहीं माँ लिखती। मैं कलमा पढ़ सकती हूँ इस बात पे यहाँ पूरे यकीन से। कोई भी मोमिन ये क्वेश्चन करोगे ना कि अगर तुम खुदा तो माज़अल्लाह कोई भी मुसलमान मोमिन ये बात नहीं कहेगा कि हम खुदा होते। माज़अल्लाह हम तसव्वुर नहीं कर सकते इस चीज का कि हम आफिया कह रही कुफ्र में है। आ जाए। तो अरे यार लेकिन बात सुनो, मैं श्रीदेवी लिख के नाम आ जाती हूँ तो क्या मैं श्रीदेवी बन जाऊंगी? बताओ ना, बताओ। अच्छा, रुको। नीचे जो मुझे नहीं पता, ये तुम लोगों की जालसाजियां हैं कि मुसलमान नाम से तुम्हारे स्ट्रीम पे बैठे हैं लोग, मुझे नहीं पता, मैं अंधी हूँ, अच्छा, पागल मैं- हूँ। तुम एक- तेरी देवी बन के एक- आ जाओगी एक ना, तुम्हें तुम्हारे शर्फ मुंह में- हासिल होगा, बिकॉज शी वाज अ वेरी ग्रेट एक्ट्रेस, यू नो। तुम्हें शर्फ मिलेगा कि मैं तुम क्या कहती हूँ, श्रीदेवी मैं बन क्या के। कहती हूँ सिस्टर, आप एक बात बताओ, चलो खुदा से प्रॉब्लम है ना, खुदा नहीं ना कहना, आप ऐसा बोलो, आप एक यू आर अ वुमन, आप एक औरत हो, आप एक लड़की हो, बीइंग अ मदर, अगर आप एक माँ हो तो क्या आप अपनी बेटी के नसीब में, अगर आपके हाथ में हो अपनी बेटी का नसीब लिखना, क्या सवाल है यार। उसके Thank you so नसीब much, में अबू सीकर। रेप कर सकती हूँ? लिख सकती हूँ ये क्या मेरी आप? प्यारी सिस्टर सिर्फ ने एक माँ बहुत का। प्यारा सवाल किया है। सिस्टर अब हम आपके हिसाब से बात करते हैं, आप और हम लोग, ठीक है जी। आप जितनी भी मिसाल दो, कहीं से भी ये बात प्रूफ नहीं होती कि खुदा, ठीक है ना शहजादी, खुदा जो है हम उसकी मखलूक हैं, सही है। आप बात करियो माँ, तो माँ जो है ना, मेरी बात सुनो, माँ का रुतबा और है, अल्लाह ने माँ का रुतबा और रखा है, ठीक है। और अल्लाह ने किसी आम कत्ल का हुक्म नहीं दिया है, आपको पता है, हम किसी को कत्ल का हुक्म ही नहीं है हमारे इस्लाम में। आप औलाद की बात करिए या बलात्कार, जो भी आप लोग करता है हम इंसानों से, बेशक अल्लाह अपनी जी जी मखलूक को, हम इंसानों को बेशक प्यार करता है 70 माओं के जितना करता है, सच बात है ये। तो मैं वही 70 पूछ माँ रही से हूँ कि आप सिर्फ एक माँ, 70 गुना माँ से। 70 माओं की मोहब्बत और एक माँ की मोहब्बत क्या आज हम लोग कर रहे शहजादी तो हैं? नहीं जान, हमारे बच्चे या हमारी बहनें हमारी मखलूक थोड़ी है। आप 70 माओं जितना शहजादी प्यार हाँ, नहीं कर सकते। माँ की से देखोगी ना तो वो मखलूक थोड़ी होगी, हमारे बच्चे हमारी वही औलाद पूछ होंगी। रही हूँ ना आपसे, सिर्फ जिसके आपको कत्ल का ये बलात्कारी का हुक्म थोड़ी शहजादी, एक माँ बन के इस्लाम में तो ये चीज भी नहीं है ना। मैं अपनी बेटी के नसीब में रेप लिख दूंगी। तो मेरी जान, माँ में और अल्लाह में फर्क है ना। एक माँ का दिल अल्लाह ने आप ऐसा मेरा बनाया सवाल कि का वो जवाब अपना, आपके सवाल की तो जवाब माँ दे दो ज्यादा मेरी बड़ी जान। हो गई। माँ बंदी है ना, माँ तो बंदी है ना, अल्लाह की मखलूक है, मैं और आप जो है मखलूक है। अल्लाह जो इस बात जी जी अल्लाह जो इस बात का दावा करता है कि मैं 70 माओं जितना जी, जी। प्यार करता हूँ, तो फिर बेशक, वो कौन सी 70 बेशक, माएं हैं? हक है। नहीं नहीं 70 मेरी माओं की जान, मोहब्बत आप बहुत बात ज्यादा को होती है। समझने की कोशिश नहीं करते ना, आप लोगों के साथ ये बड़ा मसला है। अल्लाह ताला जो कहता है ना 70 गुना ज्यादा माँ से प्यार करता है, ये मिसाल दी जाती है, सही है। तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक माँ का दिल इतना नरम बनाया ना कि माँ के कदमों तले जन्नत दे दी है मेरे रब ने। क्योंकि औरत जब वो दर्द उठा के एक बच्चा जनती है ना दुनिया में, खैर बात की बात है, माँ के तो कदमों साथ नहीं कर तले सकते। वाली जी जी जी। नहीं, आप फिर भी आप तो एक माँ तो मेरी बात समझ से ज्यादा, मैं और आप तो मखलूक है ना, हम अपनी औलाद को नहीं करेंगे, मेरी बात सुनो, लेकिन ऐसा बहुत नरम होता है। ऑनर वो मालिक है ना, आप मुझे वो थोड़ा मालिक सा है, आप उसने मेरा आजमाइश सवाल करनी सुन है। लें, अगर आप मेरा 1 मिनट मेरा मैं सवाल समझ सुने, गई। पहले ध्यान से सुने, आप गौर से अल्लाह को सुने। कंपेयर नहीं कर सकते ना मैं माँ के आपकी साथ, वो बात तो से मखलूक है, बिल्कुल अल्लाह के एग्री साथ करती है। हूँ कि बेशक अल्लाह ने दिल जो माँ का दिल है बहुत मोम बनाया है, बहुत नरम बनाया है। मैं कहती हूँ कि वो एक माँ का जो दिल है, अब आप उसका कंपैरिजन 70 माओ जितने प्यार करने वाली बात हो रही है कि क्या आप एक माँ हो करके ये लिख सकती हैं अपनी बेटी के नसीब में? तो माँ तो मखलूक है ना, माँ तो खाली के हकीकी नहीं है, वो तो वादउल ला शरीक है, अल्लाह वाहिद है ना। वो तो अपनी मखलूक को आजमाइश में भी डालता है ना, वरना पता कैसे चलेगा कि मखलूक अपने रब पे कितना भरोसा अरे करती है, रेप यकीन करके करती है, कौन सी तवक्कुल आजमाइश करती है। होती है सदफ, कितनी गलत बात है। रेप करके कौन सी आजमाइश होती है यार। साहिल, दुनिया में ये शैतान करता है ये काम, आपको पता है ना, ये जो रैप होता है या बलात्कार आपकी लैंग्वेज में, वो There is शैतान no करता है, difference इब्लीस between करता है Allah and शैतान। अल्लाह में और शैतान में फिर कोई डिफरेंस नहीं है, यू नो। फिर ना, रेप अस्तगफिरुल्लाह, करके तुम कौन माशाअल्लाह, आजमाइश ऐसा लेता है कुछ यार। नहीं है। सदफ देखो सदफ वो सदफ वो अल्लाह के हुक्म से, मेरी बात
शहजादी मेरी बात सुनो यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ शहजादी सदफ। रेप करा के कौन सा आजमाइश होती है यार? ये कैसा आपका अल्लाह है यार सदफ? ये रैप करा के यार ये अल्लाह नहीं, ये बात शैतान है। रैप पे क्यों ला रहे हो? बात देखो ना, किसी को कैंसर होता है, किसी को brain attack होता है, आप बोल रही हो कि रैप किसी को करा brain के tumor होता आजमाइश है, के अल्लाह। किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, तो वो सब आजमाइशें ना, वो सब। नहीं सदफ, मेरे को एक बात बताओ, ये रैप करा के आजमाइश, ये रैप करा के आजमाइश क्यों दे रहा है अल्लाह? इसका बताओ। नहीं, वो इब्लीस कर रहा है, वो शैतान करता है, इब्लीस का काम है। लेकिन रैप अल्लाह नहीं आजमाइश तो करता, अल्लाह ले रहा है ना। अल्लाह ना करवाता। मेरी बात सुनो, वो अल्लाह के हुक्म से होता है वो चीज। मेरी बात सुनो, कुरान में फरमाया गया है, कुरान पाक में फरमाया गया है कि अगर कोई हम पे जादू भी करता है ना, तो वो अल्लाह का हुक्म होता है, तो वो जादू हम पे असर करेगा। अगर खुदा का हुक्म नहीं होता, वो जादू भी असर नहीं करेगा। आपको पता है ना, कुरान पाक में है। और जब कुरान पे आपको ये पता है कि सूरह फलक सूरह नास कब उतारी गई थी? जब हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था। एक काफिर जादू हो औरत गया थी। आपके आका पे? साहिल जादू अल्लाह को बताना था ना यार, उम्मत पे हो रही थी वो चीजें। और वो जादू होता तो पता है आपके, अल्लाह के हुक्म से हुई थी वो सदफ, चीज, और फिर उसका उतार सदफ, के मेरे रब ने। सदफ, know, जब जब आपके साहिल मेरी रसूलुल्लाह पर, हाँ जब आयशा पहले जब बोलो। मुझ पे जादू होता है ना, तो मुझे पता है कैसा फील होता है। मुझे लगता है मुझे हॉर्नी फील नहीं हो रहा। देन आई सेड ओ किसी ने जादू किया, यू नो, क्योंकि मुझे नहीं, horny feel रसूलुल्लाह नहीं हो रहा होता। रसूलुल्लाह के ऊपर जो जादू हुआ था, उनको ऐसा लगता था कि वो किसी के साथ डिंगी डिंगी किए हैं, हालांकि किए नहीं होते थे। ये कौन सा जादू है सदफ? ये तुम पे कभी हुआ है कि आप किसी के साथ डिंगी डिंगी किए नहीं हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने डिंगी डिंगी किया? ऐसा जादू हुआ है आपके ऊपर कभी? अस्तगफुल्लाह। देखो, ये तो तुम वही बात है ना, काफिरों से बहस, ही अपना ईमान खतरे में पड़ जाता है। आज मेरा लास्ट डे है, ठीक है? तुम लोगों के यहाँ मेरी बात सुनो, मैंने आना नहीं अरे है next, ठीक है? में लिखा हुआ है। तुम लोगों ने नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई तफसीर नहीं है, कोई तर्जुमा नहीं है। मैं मुसलमान घराने से हूँ, खोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी से सुन्ना.com। और मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं आका पे जादू हुआ है, लेकिन जिस किस्म की बकवास आप लोग कर रहे हो ना, गुस्ताखी, वो झूठ है, बकवास है, वो आप सबके बनाए हुए अस्तगफुल्लाह Darling, बातें। that's और not true, आप लोगों you के know. हुक्म है। साहिल, मेरी बात सुनो, मैं तो आज लास्ट डे आई हूँ और मैंने आज के बाद आना नहीं है, ये बात याद नहीं, हो। आप डार्लिंग, you will हमेशा come होगे। यहाँ आने के बाद every मेरा ईमान खतरे में पड़ रहा है ना, क्योंकि मेरा ईमान कैसे यार। खतरे में पड़ता है मैं बताती हूँ कि मेरे कान गुनहगार हो रहे हैं तुम्हारी गुस्ताखी के। सही है, मेरे कान गुनहगार हो रहे हैं तुम्हारी से। सीधी सी बात है, हमारे लिए तो ये कुफर है, अपना ईमान खतरे में पड़ जाता है। क्योंकि आप लोगों के लिए सूरह बकरा में, कि आप लोगों ने समझना नहीं है, आपके दिलों पे कानों पे गुप अंधेरा है, पट्टियां डाल दी हैं गुमराही की, अल्लाह नहीं हटा रहा तो हमारी क्या औकात? बस सीधी सी बात है, आप लोग से तो जहन्नुम भरेगा। करो गुस्ताखी जितनी करनी है। अच्छा, वो जादू वाला देखना है आपको? अरे साहिल भाई हाँ, जादू हुआ है, लेकिन उस तरह नहीं हुआ जैसे तुम बकवास कर रहे हो। साहिल, माइंड योर लैंग्वेज, तुम पता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे तो तुम्हारे उलमा ने लिखा है ये सब चीज। बीमार हो गए थे जी? नहीं, आका करीम बीमार हो गए थे, उनको बीमार बीमार किया हुए गया थे। था। उनको लग रहा था उन्होंने और वो सेक्स नबी- किसी अपनी बीवी के साथ किया, अस्तगफुल्लाह, but उनको अस्तगफुल्लाह। हुआ नहीं था। अस्तगफुल्लाह, अस्तगफुल्लाह। गीता देवी, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे गीता आप बोल रहे हो। Darling, that's true. गीता बोल रही है, राम राम सत्या। खोलो जल्दी से। आप बोलो शहजादी, आप लोगों की कब्र तो होती नहीं है, आप लोग खुद को जलवा देते हो, समझते हो कि हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं पवित्र शहजादी, है darling, आपको खुदा पवित्र। के हुक्म से दोबारा जमा किया जाएगा आपकी राख को, उसको एक जज्बे खाकी बनाया जाएगा। उसके बाद मिनट। आप लोगों की वो हाल होना है ना कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है? अच्छा सदफ, एक मिनट रुको, ये लो सदफ, ये लो फतल बारी और जाद अल माद, ठीक है? इसमें क्या लिखा है? सो इट इज क्लियर दैट द हदीस इज सही एंड दैट इट डज नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटस ऑफ prophethood. Allah may he be glorified and exalted, protected his prophet and made him infallible before his spell was cast during it and afterward. The spell did no more than make the prophet think that he had intercourse with his wives when he had not done so. It had to do बकवास, with ये तुम लोग ने फेक purely दिखाई है। तुम एक दावत मिनट। इस्लामी की खोल दो, अहले सुन्नत वालों की खोल दो ना, मैं उनकी बोल निकालो रहा ना। हूँ। उन्होंने इस्लाम बनाया, अहले सुन्नत वालों ने, ये जो मदनी वालों इन्होंने इस्लाम को बनाया है। तो ये भी लोग Let me रेफरेंस complete. लेते, सही बुखारी से लेते हैं ना।
हाँ एक वो मिनट कौन मैं थे अपना मोहम्मद पहले के साथ चिल कर रहे थे उस टाइम, उसके साथ टाइम गुजारा उन लोगों ने। ये चिल, फेक चिल। हदीस दिखा रहे हो तुम लोग की हजरत- अपनी। सदफ मेरे को पहले हवाला पूरा रीड कर लेने दो। हम जो बोलते हैं वो दिखाते हैं। रुक जाओ थोड़ा, मैं आपको लेता हूं, आप पहले हदीस देख लो। आज हवाला भी दिया है, फतल बारी और जादल माद। ये तुम्हारे जितने जो ये जो तुम बरेलवी उलमा के नाम दे रहे हो ना, ये सब यहीं से सीखते हैं। क्या कहते हैं? जादू जो हुआ था वो सिर्फ किस बात का हुआ था? द स्पेल डिड नो मोर देन मेक द प्रॉफिट थिंग। सिर्फ यही जादू उनके ऊपर हुआ था कि उनको ऐसा लगता था दैट ही हैड इंटरकोर्स विथ हिज वाइफ्स। उन्होंने अपनी बीवियों के साथ डिंगी डिंगी की है व्हेन ही हैड नॉट डन सो, हालांकि उन्होंने नहीं किया था। इट हैड टू डू विथ अ प्योरली वर्ल्डली मैटर एंड हैड नथिंग टू डू विथ हिज कन्वेइंग ऑफ द मैसेज एट ऑल। The word of the scholars quoted above are sufficient, and whoever wants to know more may refer to Fathul Bari and Zad al-Mad. ये हदीस है और ये आपके उलमा बता रहे हैं। ये देखो, अच्छा इसमें किसमें है? इट इज प्रूवन इन अल सहीहैन। सहीहैन किसको बोलते हैं? बुखारी और मुस्लिम। बुखारी और मुस्लिम की हदीसें तो गलत नहीं है ना? उसको मुतफक्का अलैह बोलते हैं ना। हाँ, सहीहैन भी बोलते दोनों से हैं। है। दो सही, सहीहैन मतलब दो सही। अच्छा, may Allah be pleased with her, said the messenger of Allah was bewitched until he thought that he had intercourse with his wives when he had not done so, and that is the worst kind of witchcraft. Al-Qadi Ilyas said witchcraft is a kind of sickness which happened to him like other kinds of sickness that cannot be denied, and it does not detract from his prophethood. ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस, ये हम नहीं बना के ला रहे। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये रसूलुल्लाह की सारी चीजें ले दे के आके सेक्स पे ही क्यों हो जाती थी? ये हम बिस्तरी पे ही क्यों चली जाती थी? साहिल, यू नो वाई? क्योंकि उस जो अरबिक लोग हैं ना, उनको सिर्फ दो चीजें चाहिए। उनको सिर्फ एक सेक्स चाहिए या उनको माल चाहिए। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था उस टाइम के अपने रिलीजन को ग्रो करने के लिए, कि उनको सब चीजें परमिशन दे दो। फॉर एग्जांपल लूट मार करना और सेक्स की परमिशन देना। सो दैट वाज द यार रीजन गीता, दैट तुम्हारा तजुर्बा लग रहा है मुझे। गीता, तुम्हारा अच्छा खासा तजुर्बा लग रहा है अरबियों के साथ। कहीं ले ला के तो नहीं आएंगे तुम? तुम्हें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट मोहम्मद कौन था? मोहम्मद तुम्हारे चाचे का पुत्र था, वो भी तो अरबी था ना। मैंने बताया ना, यू हैव अ प्रॉब्लम विद अरबिक पीपल। हाँ, तो मोहम्मद कौन था बताओ? कौन था मोहम्मद? वो भी तो अरबी था ना। उसकी तो तुम बड़ी वो कर रही हो। तुम्हें बाकी अरबियों के लौड़ों से प्रॉब्लम है, लेकिन मोहम्मद के लौड़े से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। What the अरे fuck, man? कंट्रोल 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 हजरत आयशा, कंट्रोल कंट्रोल। ये मोहम्मद हजरत आयशा जो है अपने पड़ोसी की बात कर रही है गाइस, कोई इसको अलग ना समझे। Yeah, it's the second time she said तुम्हारा अरबियों के साथ एक्सपीरियंस है। तो फिर ये खुद किसकी साइड ले रही है? He was Arabic too, और वो भी जाहिल अरबी। वो तो आका करीम है, ठीक है, जिनके लिए कायनात हाँ, वो तख्लीक की आका गई। करीम लेकिन है। तुम लोग की दो काफिर हो ना यार, तुमने जहन्नुम में जाना है। मैं तरस पता है तुम पे क्यों आता है कि तुम जो हो ना काफिर हो और तुमने हमेशा मुझे भी जलना तुम है पे यार। इसीलिए तरस आ रहा है क्योंकि तुम एक मुझे बस ये जाहिल कि नबी तुम्हारी की हार्ट 10 तरफदारी कर साल और होगी, 20 30 40 50 100 साल जी लोगी, इससे ज्यादा तो नहीं जियोगी ना। लेकिन जब तुम्हें वहां जहन्नुम में डाला जाएगा ना, तो तुम उस वक्त कहोगी कि काश मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक और सच मान के ना ईमान ले आई होती। उस वक्त तुम याद मैं करना, तो कहूंगी ठीक बस है? मुझे मोहम्मद पेश कर दो, मैंने उसकी गांड मारनी है। मैं तो ये कहूंगी, यू नो दैट। मिस्टर साहिल, ये आज आखिरी दिन था आपकी ब्रॉड पे, ठीक है? अच्छा। क्योंकि मैंने बोला ना, मेरी बात सुने, मैं जा रही हूँ। अरे मेरी वो बात अपने सुने। आप पड़ोसी लोग- की बात कर रही है। नहीं सदफ नहीं नहीं, सदफ बात सुने, नहीं गलत बात, मेरी बात सुने साहिल, मैं जा रही हूँ, पड़ोसी ठीक है? की मैं बात किसी कर को रही है। नहीं
ना हमारा मजहब हमें गाली देना सिखाता है। और उस दिन भी आयशा ने उस दिन इसने क्या थी गालियां, उस दिन तो उस दिन तो ये यार ये रंडी के अलावा बात नहीं कर रही थी। इसने ही मजबूर किया था, इसने ही बदतमीज मुझे मजबूर किया था जो ये बकवास कर रही थी। मैंने माज़अल्लाह, मजबूर किया था, बंदर के तुम खुद लिए इतनी भड़की मैं हुई थी 1 उस दिन। घंटे से नीचे ना बैठ के तुम्हारी बातें सुन रही थी, जो तुम उम्रे के बयान पे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्ताखियां कर रही थी ना मायशा पे, वो सही बात नहीं है। और जिन पाक हस्तियों का तुमने नाम मुबारक रखे, तुम क्या समझती हो कि तुम लोग को कुछ हो नहीं रहा, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा कुछ गलत, तो तुम क्या समझ रही हो कि खुदा नहीं है? नहीं, खुदा है। नहीं है, जालिमों को नहीं है। एक हद तक मेरी छूट देता देखो है। ला इलाहा कोई खुदा नहीं है, ओके? गीता दीदी मेरी बात सुन, शहजादी गीता मेरी बात सुने आप। एक वक्त तक रब करीम ना आपको कौन में गीता शहजादी? आपको बात पिघल सुने, जाती आपको ना हूँ, you एक know? हद तक लिमिट में जब तक अल्लाह ने चाहा ना आपको दे रहे, सही है, छूट मिली है आप लोगों को, जालिमों को भी छूट मिलेगी। और जितनी जिस जालिम को छूट मिली है ना उसकी रिस्क अरे हम जालिम नहीं है मेरी जान, हम लोग जालिम नहीं है। शहजादी आपने गालियां देनी है, सो बिस्मिल्लाह आप दो, अरे मैं तो अरे जा मैंने रही हूँ, गालियां नहीं, मेरा मैंने तो कहाँ ईमान गाली खराब दी हो है? जाएगा। मैंने तो कभी किसी को गाली नहीं दी। ठीक है, मेरा ईमान गायब हो जाएगा, अस्तगफुरुल्लाह, मैं अच्छा, गुनाहगारी में आ जाऊंगी। आपने पहले भी तुम्हारा सदफ, लास्ट स्ट्रीम में सदफ। भी गायब हो गया था ईमान, यू नो। नहीं, मेरा इस तरह नहीं होगा, मेरा इस तरह नहीं होगा माज़अल्लाह कि माज़अल्लाह मैं कुछ गलत करूंगी, तुम्हारा नहीं ईमान खतरे में बढ़ नहीं, आप सुन के हो रहा है तुम्हारे मुंह से ना ये गंदी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अल्लाह करीम के लिए सुन के मैं कुफर में आ जाऊंगी ना। अरे वो पड़ोसी के लिए बोल रही थी सदफ, ईमान एक खतरे में मिनट। पड़ बैठो अच्छा, तुम आराम से, इधर तुम लोगों का जो काम है हजरत आयशा होना थोड़ा वही है जो रुक जाओ। अल्लाह का हुक्म है। सदफ मैं म्यूट कर रहा हूँ, हजरत आयशा थोड़ा रुक जाओ। सदफ वो उसने जो बोला है वो पड़ोसी में एक इंसान रहता है नाम के साथ, उनको बोला है उन्होंने, ठीक है, वो आपके नबी को नहीं बोल रही है। अच्छा सदफ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने इस किस्से का इनकार कर दिया, ठीक है, अगर मैं आपके लिए स्पेशली बुखारी और मुस्लिम की हदीस खरीद के लाके आपको कैमरा ओपन करके अगर उसमें बता दूं कि ये लिखा हुआ है, बुखारी की हदीस लिखी हुई है, फिर आप क्या करेंगी सदफ? मैं गर्दन कटवा दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आगे तुम बोल रहे हो। यार मैं मुसलमान हूँ ना, वो बीमार हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना जादू अरे का मैं- असर किया था, बहुक्म खुदाबंदी, बस और सदफ, कुछ नहीं सदफ। हुआ था, बीमार हुए थे। सदफ उसका सदफ उतार मैं हुआ था तुमसे पूरे क्या कह रहा नाश हूँ पे। सदफ, मैं अच्छा मैं एक काम करूंगा, चलो तुम्हारे लिए मैं लाइफ का इतना बड़ा रिस्क लूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए शहजादी, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगा। मैं म्यूट करके बोलता हूँ, तुम्हारे माइक से आवाज आती है। मैं तुम्हारे लिए सदफ लाइफ का इतना बड़ा रिस्क लूंगा, मैं तुम्हारे ये जो हरे साफे वाले हैं या वाइट साफे वाले हैं उनकी मस्जिद में जाऊंगा और बुखारी की हदीस लेके जाऊंगा किताब, और मुस्लिम की हदीस लेके जाऊंगा, और वहां के जो आलिम साहब है उनके सामने वीडियो बना के उनसे बताऊंगा कि भाई देखो ये हदीस है बुखारी में जहाँ पे रसूलुल्लाह को जब जादू हुआ था तो उनको इस तरीके से लगता था कि वो अपनी वाइफ के साथ डिंगी डिंगी कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने नहीं किया था, ये असर हुआ था जादू का। ये बात सही है या गलत है, इस हदीस में है क्या नहीं है, ये बनाऊंगा। अगर वो हाँ कहेंगे सदफ, फिर इस्लाम छोड़ दोगी? मैं तुम्हें एक लाइव वीडियो बना के ना कल अपने मस्जिद के मौलाना से ना भेजूंगी। तुम व्हाट्सएप नंबर दो, मैं या मेरा लिखो, मैं दे रही हूँ तुम्हें 00966। अरे 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 अरे, एक मिनट नहीं देना है, व्हाट्सएप नंबर आपको नहीं देना है, इधर पब्लिक में इतना जज्बाती नहीं होते सदफ। आप एक काम करो, यहाँ पे मेरा नंबर चल रहा है, आप उस पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, आप अपना नंबर मत दो इधर, ठीक है? ये अरे यार हजरत आयशा आपने तो जज्बाती कर दिया यार मेरी सदफ को। यार I was just talking about the facts, you know, but she was not वो listening, नंबर so I मैं अपने इमाम से बात कराऊंगी तुम्हें, ठीक है? मैं उनसे बात कराऊंगी अगर आपको ईमान अच्छा। है तो। इस बात सुनो के मेरी माज़अल्लाह बात ईमान सुनो। तो नहीं है आपके अंदर, लेकिन जो है बात पे सुनो। यकीन तो मैं करवाऊँ। अच्छा सुनो सदफ, आप और बात मुझे सुनो सुनील, जिस तरह तुमने ये अस्तगफुरुल्लाह गीता देवी को आयशा के नाम से बिठाया ना, कल तुमने एक जाल साथ अपने किसी ओम को बिठा देना है, दाढ़ी मूंछों वाले को पगड़ पहना के, और उसने वही फट गई, what the fuck is that? फट गई, ये लास्ट में फट गई।
अभी इसका ईमान जाएगा and she will start abusing you. को कहती हूँ कि अल्लाह इसको हिदायत दे, इसको हिदायत दे, मेरी नेक दुआएं इसके लिए। लेकिन अगर इसके लिए हिदायत नहीं है तो इसको ना गर्क करे जहन्नुम में, जो जो इसने जितनी गुस्ताखी की है ना, इसको क्या होना चाहिए जहन्नम में? आमीन आमीन। अच्छा, ये गीता देवी के साथ जहन्नम में क्या होना चाहिए सदर? वो तो अल्लाह की मर्जी है ना यार, हम कौन होते हैं? मगर मैं इसके लिए बहसियत अल्लाह मुसलमान आज बताता दुआ है करती हूँ कि सदफ। अल्लाह ताला इसको सदफ, ईमान दे दे। सदफ। अच्छा सुनो सदफ, आपको मालूम है कि कौन सी यार, मैं अभी रेफरेंस ढूंढ के निकाल लूंगा, कुरान की एक आयत है, उसकी तफसीर में आपके उलमा लिखते हैं कि जो जहन्नम में जाएगा तो, और आप भी तो इतना तो पाक नहीं है आपके सीधे जन्नत में चले जाएंगी, आप कुछ वक्त के लिए तो जहन्नम में जाएंगी। तो आपको पता है सदफ जी, तफसीर में आता है कि अल्लाह आपके पिछवाड़े वाले सुराख से जंजीर डालेगा और मुंह से निकालेगा और उस जंजीर को आपके गले में लपेट देगा। सदफ जी, आपको पता है ये सजा आपके लिए अल्लाह ने रखा है जहन्नमियों के लिए? जी सजाएं हैं। ये पता है आपको, आपके पिछवाड़े की सुराख से जंजीर डाल आपके, के, हमारे नहीं, आपके माज़अल्लाह काफिरों के, आप लोगों के लिए दर्दनाक अजाब, मुसलमान मोमिनाओं के लिए आप नहीं है, सीधा हमारे लिए, सदफ, आपके लिए। आप सीधा जन्नत में जाने वाली हो। नहीं, मैं कौन होती हूँ इस बात का फैसला करने वाली? हो सकता है तो मेरे कुछ गुनाह possible ऐसे है हो ना जो कि अल्लाह ताला जहन्नम में- हो सकता है कि मेरे कोई नेकियां ऐसी हो कि मेरे गुनाहों पे हावी हो जाएं, क्योंकि मैं भी इंसान नहीं, हूँ, और बच्चे अगर तो किए होंगे मैंने भी और गुनाह। कोई नेकी ऐसी ना हो कि सीधा जन्नत में आपको लेके जाए, बल्कि अल्लाह आपको देखो पहले मेरी बात जहन्नम सुनो, में जो मेरा डालेगा। बेहतर समझेगा ना वो मेरे साथ करेगा, ठीक है? जो मेरे अल्लाह ये का हुक्म बेहतर है। होगा मेरे साथ बस वही होना है। ये बेशक सजा जो आपको मेरे मंजूर? अरे मैंने आपको सुन कल तो लो परसों बताया पहले थी सदफ, कि मैं म्यूट कर रहा हूँ, रुको। पहले बोलो कि ये सजा आपको मंजूर है कि आपके पिछवाड़े वाले सुराख से जंजीर डाल के शायद अभी बात तुम सुनो। जस्ट ले रहे हो, कि उन काफिरों और उनके लिए दर्दनाक सजाएं ना जो अल्लाह ताला को यानी शरीक करते हैं अल्लाह के साथ, और हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? तो एक बात बता दूं, अगर मुसलमानों ने भी कुछ गुनाह ऐसे किए ना, जैसे जिना, चोरी, चुकारी, शराब नौशी, जो कुछ भी जो खुदा को नहीं पसंद है, ठीक है ना, गुनाह तो गुनाह है ना, तो वो सजा देने का भी हक रखता है और माफ करने का। लेकिन हमें उससे माफी की इसलिए उम्मीद है कि हम कलमा गो भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वहदानियत पे बहसियत मुसलमान यकीन रखते हैं, और वो गफूर रहीम है, सही है? अगर वो कहार है तो वो रहमान भी है, समझ रहे हो? इसलिए वो रेप कहता है ना, रेप करो, क्योंकि वो गफूर वो रहीम नहीं है। कहता, वो नहीं कहता फिर क्या, कौन कहता है? कहता नहीं, वो करके दिखाता है। अरे वो कहता नहीं है सदफ मैडम, वो करके दिखाता है। इतना आप एक गफूर औरत रहीम। है, आप एक लेडी, एक फीमेल है, आप फीमेल की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही है। इब्लीस करता है ना, वो इब्लीस करता है, शैतान करवाता है वो काम जो तो गंदे नबी काम में है ना, इब्लीस घुस गया था। शैतान करवाता है। आपको क्या लगता है ये गीता तुम ये में बताओ, शराब अल्लाह की बड़ा है या जिना शैतान करी बड़ा है? है? नहीं तो अल्लाह ने वादा किया ना उसको, मैंने क्या अर्ज किया, अल्लाह ने उसको वादा किया कि अल्लाह को उसको इतने खुली वादे छूट दी, वादे करने की ताकत क्या दी है। जरूरत थी? ऐसे वो वादे अल्लाह करने की से क्या जरूरत थी? उसने ये वादा किया है, मेरी बात सुनो, अल्लाह से उसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे क़यामत तक बंदों को भटकाऊंगा, बंदियों को। तो मेरे रब ने कहा था जो मेरे नेक मोमिन बंदे बंदी होंगे ना, वो तुम्हारे बेकावे में नहीं आएंगे। और बिल फर्ज अगर वो अपनी नफ्स पे नेक लोग भी आ जाते ना, जैसे बात सुनो, बहकावे में आ जाते ना, तो तुम्हें उस उनकी भी बच्ची का सजा या है। उस लड़की का बात क्या नहीं पता है। कसूर है जिसका रेप हो रहा है? ठीक है, तुम ये बताओ, उसमें उस लड़की का क्या बात कसूर है? कसूर उसका की तो नहीं कोई है ना कसूर यार, नहीं है ना। वो नहीं, उसका बेशक कसूर नहीं है, तो उसके लिए देखो अल्लाह ताला ने अजर भी तो रखा है ना आखिरत में। नहीं नहीं, क्या रेप तो अल्लाह ही अच्छा है? करवा रहा है ना। आखिरत सारी में चीजें अजर अल्लाह है की ना। मर्जी से ही हो रही हैं। सारी चीजें दैट्स ट्रू। यार सब कुछ सारी अल्लाह की मर्जी से चीजें होता है, अल्लाह की हमारा मर्जी से ही खाना हो रही है। पीना, सब कुछ अल्लाह की मर्जी रेप भी बेशक अल्लाह की अल्लाह- मर्जी से हो तभी रहा है, तभी वो नबी भी ने अल्लाह 6 की साल की मर्जी लड़की मर से रहे शादी हैं। की और 9 साल की उम्र में सेक्स किया। रैप को क्यों ला रही हो? सब कुछ अल्लाह की मर्जी से ना, आप लोग रैप को तो क्यों मैडम target रेप कर ही रहे हो? कहलाता है, वो रेप ही कहलाता है मोहम्मद ने मैडम। भी आयशा के साथ अगर 9 आपके साल साथ की उम्र कोई में तो ऐसा किया करेगा था, तो वो आप क्या भी शांति से बैठ अल्लाह के के उसको हुक्म सुन से लेंगी, हुआ था। समझ लेंगी? बात करो, तुम लोग बुतों को मानते हो, तुम लोग बुतों की पूजा करते हो, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ करवाता है रैप, ये वो नहीं करवाता। तुम्हारे क्या इंडिया में बलात्कार भगवान नहीं नहीं, होते? वो नहीं करवाता, वो नहीं कराता, अल्लाह करवाता है। एक मिनट, तुम लोग किस बात को मानते हो? वो कौन करता है? अच्छा बताओ, इंडिया में जितने भी बलात्कार हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, ये बताओ ना। तुम्हारी सारे वीडियो जो अल्लाह बनाते हो, करवाते संगीता हैं। देवी, संगीता बाजी के नाम से जो तुम लोग मैक्सिमम लोग वीडियो नबी डाल की रहे सुन्नत ही follow करते हैं, मैडम। तुम लोग बनाने में टॉप पे हो इंडियंस। तो बात सुनो, वो कौन करवा रहा है तुमसे? तुम्हारे भगवान अबे करवा रहे हैं, वो थोड़ा तुम्हारे करवा रहे दिमाग हैं। खोल के लॉजिक तो लगा।
वो ये कुरान हदीस वीडियो बना रहे, कम से कम थोड़ा लॉजिक तो होना चाहिए इंसान के पास। डार्लिंग, तुम लोगों की वजह से हो रहा है दुनिया में। जो शैतानियत वीडियो तुमने फैलाई है ना बच्चे बच्चे को सोशल मीडिया पे तुमने आगे ही दिया है, वो तुम लोगों की गंदी वीडियो से लोगों में हो रहा है। डार्लिंग तुम क्यों यूज कर रही हो स्मार्टफोन? ये तो उठाइयों की वो है ना इन्वेंशन, तुम क्यों यूज कर रही हो? नहीं नहीं तुम बताओ ना, ये पूरा ये तो वीडियो तुम लोग जो invention है। भाभी देवर भाभी का सेक्स सर का ये तुम लोग करवा रहे हो, अल्लाह माफ करे। तो मोहम्मद ने भी तो अपनी मुंह बोले बेटे अपनी किया ना, मोहम्मद ने किया नहीं ज़ैनब के साथ, मोहम्मद ने अपने मुंह बोले बेटे की साथ बेटी। मान लो कि तुम लोग इब्लीस के औलाद हो, गीता भी तुम एक्सेप्ट करके जाओगी आज के तुम्हारी जो गीता नीता है वो तुम लोग शैतान की औलादे हो, शैतान की बेटियां हो, और तुम लोग ने जहन्नुम में। अरे अब ये बताओ मोहम्मद ने अपनी मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी की। अच्छा एक मिनट क़यामत की बात भी रहना है। सदफ बीबी मेरी बात सुने, शहजादी बीबी मेरी बात सुने। एक सवाल, मेरी जॉब जाएगी आप आज तुम्हारी वजह से, मैं 2 बार काम से बाहर निकली हूँ सिर्फ तुमसे बात करने। मुझे इतना बता दो, ये जो आपका इतना पक्का ईमान है। अरे कौन सांस ले रहा, सब म्यूट कर ले बाकी यार। ये गीता का सांस हो रहा है, इसका आखिरी वक्त आ गया, इसने कहा मुझे जहन्नुम में जाना है। ओ माय गॉड मोहम्मद अच्छा वो गीता में गीता का आखिरी वक्त आ गया है। ओम ओम सत्य करो सारे हिंदू भाई बहन जाओ, ओम ओम अल्लाह सत्य की करके आओ। आप इतनी सच्ची दीवानी है, जिस आप इतनी पक्की वाली भगत हैं, आप जो बोल रही है ना बार बार सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम, जी शहजादी अल्हम्दुलिल्लाह प्यार के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी शहजादी अब ये आपको इतना बताए, आपको किन अल्फाजों से नवाजा गया है कुरान में? तो बात सुनो ना, अल्लाह ने जितना देखो इस्लाम में, मेरी बात सुनो, इस्लाम में जितने औरत को हुकूक है ना किसी मजहब में नहीं है। मेरी बात सुनो, आज गैर मुस्लिम ना इस्लाम में औरतों के लिए गैर मुस्लिम लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से है क्योंकि जो मजहब हमें इज्जत नहीं देता, जो अल्लाह जो उसका जो नबी है वो जो औरतों को इज्जत नहीं देता, जो किसी को इंसानियत के लिहाज से नहीं देखता, उस मजहब शहजादी आप लोग अपनी गुमराहियों की वजह से डूब गई हो ना, आप नहीं समझना, समझ के नहीं शहजादी समझ हो, आप इब्लीस की औलाद बन गई हो ना, इब्लीस तुम्हारे पे हावी हो गया है। सीधे मायनों में बोलो, इब्लीस तुम पे हावी हो गया है, सही है। और खुदा से आप दूर क्यों हो रही हो? मेरी बात सुनो, अच्छा कुरान को ना किसी दिन उर्दू करो और तर्जुमे से कोशिश करो, और अल्लाह से बोलो अगर अल्लाह आप है हाँ तो तू है तो मुझे ना देख ही रहे थे। तर्जुमा ही पढ़ के फंसे हैं, ना पढ़ते तो पता ही ना चलता। नहीं मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, कुरान बेशक पढ़े, ईमान वालों के लिए हिदायत है। लेडीज थोड़ा रुक जाओ, ईमान वालों के लिए हिदायत है। अरे सदफ तुम नहीं लेडीज पहले नहीं तो हो साहिल क्या? मुझे उनसे बात करने दो, आप नहीं बोलो साहिल, अरे उनसे बात करने दो। अच्छा देता हूँ, रुको तो आपने सही, कोई ladies- गंदी बातें करनी है छोड़ दो, आप मुंह बंद करके चुप करके बैठे रहो साइड में, अरे गंदी मुझे बात नहीं लड़कियों से कर रहा बात मैं। करने दो। अरे अरे करना आप साहिल रुको भाई तो को ना सही। कुछ कहे, वो गंदी बातें कभी नहीं करते। मोहम्मद हाँ तो इतनी देर से क्या कह रहे हैं, सब खुला गंदी बातें ही करते हैं वो। मोहम्मद से गंदी नहीं करते। सदफ सुनने का तो थोड़ा रखो यार। सदफ मेरी नहीं, बात तो सुनो, आप ये मेरे लास्ट बातें सवाल कर है। रही हैं। एक मिनट सदफ, ये लास्ट सवाल है, उसके बाद हमें बाकी लोगों से भी बात करनी है। हमारे लाला जी साहब जी भी करें, आप मैं जा इंतजार कर रही रहे हूँ हैं। जी ओके। नहीं ये सवाल लेके मुझे बस बताओ आज साहिल आप- आज आखिरी थी, मैं आखिरी बार आई थी, ठीक है, मैं अभी सब नहीं, ऑफ करके हमेशा जा रही हूँ आओगे। नोटिफिकेशन। हमेशा सही है। हमेशा होगी। नहीं हाँ आप हमेशा नहीं मैं आओगे। नहीं आऊंगी इजाजत- साहिल, अब नहीं आऊंगी, क्यों? क्योंकि मेरा ईमान खतरे में पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अरे मेरे नहीं, कान नहीं। गुनाहगार हो रहे हैं, हम- गुस्ताखी में आ रहे हैं। अच्छा सुनो, आप हमेशा आओगे, मेरी बात सुने, एक लास्ट सवाल आज के लिए लेके जाओ। अभी आपने कहा कि भैया क्या भाभी और देवर का डिंगी डिंगी बताया जा रहा है। यार बाकी लोग म्यूट कर ले यार, किधर से तो यार गंदी कुरान में आवाज तो आ रही है। पर्दा है ना, देवर भाभी का पर्दा क्यों है? अरे शैतान की सुनो, वजह से ना। सदफ मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। अच्छा बोले। उसमें फिर हजरत आयशा ने आपसे ये सवाल किया था कि क्या गीता आपको देवी, पता साहिल है। पहले उसको गीता देवी बोलो, गीता देवी, साहिल उसको गीता देवी बोलो। शहजादी, अच्छा शहजादी गीता देवी ने आपसे ये सवाल किया था कि अरे हमारे लाला साहब को इंट्री मारना है। एक मिनट रुको, ये मैं एक जगह खाली कर रहा हूँ। लाला जी आ जाइए। आपको पता होना चाहिए लाला जी, आपके नाम से एक 2 नंबर ने भी स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, बाद में हमको मालूम पड़ा कि वो 2 नंबर लाला जी है। वील धमाका क्यों ज्वाइन कर रहा भाई, रुक जा थोड़ा। अच्छा ये सदफ के बैकग्राउंड से ही नॉइस आ रही थी। सदफ लास्ट मेरा सवाल आज के लिए आपके लिए है, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जरूर जुड़ना। अच्छा अभी आपने देवर और भाभी की बात की, फिर
शहजादी गीता देवी ने आपसे ये सवाल किया कि आपको पता है कि रसूलुल्लाह ने अपनी तलाकशुदा बहू के साथ शादी किया था, इस पे आपको क्या कहना है? और उससे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन बी रेडी। नहीं, मैं करूंगी, आज मैं करूंगी। ओके, हकूक सीकर। And here we have our favorite Murtad, Adam Seeker. हेलो एवरीवन, सलामुल मुता ब्रदर एंड सिस्टर्स, क्या हाल है? सलामुल मुता। منظر كتر شزاغة برشة زي ما طاحر الشيسي انت البقوشة. क्या ये क्या था? ये कौन थी? पश्तो में ये गालियां थी। शहजादी गीता देवी थी शायद। पश्तो में गालियां थी बस। नहीं, जर्मन में मेरे ख्याल से गीता देवी ने शहजादी गीता देवी आपने बोला या सदफ ने बोला है? सदफ ने। مستر كتر شزاغة الشيسي انت البقوشة سما بابار الشيسي انا مستر قلت لعنت لعنت لعنت. Kleine Fotze. अरे सदफ, ये था क्या? लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज थी ये? मैंने तो वेलकम किया आप सब हिंदुओं को। मैंने बताया तो है, जो जिस काबिल होता है वैसे सदफ है welcome ये। देखो यार, औकात है उसकी गालियों की, तो क्या किया जा सकता है। अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे कोई टेंशन नहीं इस बात की, पता था कि ये मैं जॉन कल है? में आ रहा हूँ। ये वहाँ से गंदी आवाज तो जॉन की हो सकती है। मुझे ये पता गंदी था आवाज कि वाला मैं- जॉन आ गया, अब मेरा जाना बनता है। गंदी आवाज वाला जॉन आ गया, मेरा जाना बनता है। चले सही है। ओए किलकिल बंद कर बे, किलकिल बंद कर, जरा हौसला रखना यार। अभी तो मैं आया हूं, पता है यार, गंद में आया हूँ, मुझे पता है। मैं इसलिए साहिल को कह रहा था कि यार गंद के साथ ना बुला मेरे को, गंद फौरन उससे जाता है, क्योंकि मैंने आगे किचन में पत्थर फेंकने होते हैं, फिर गंद उछल के मेरे ऊपर गिरता ही गिरता है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही थी साहिल, आप लोग इससे बात कर रहे थे कि ये मुसलमान भी जहन्नम में जाएंगे। कुरान की चैप्टर नंबर 19 की आयत नंबर 71 72 है। सदफ कभी जॉन पढ़ा कुरान? वेट 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 सदफ, जॉन कुरान जाने पढ़ा? मेरी बात सुनो। सदफ पागल की बच्ची, कुरान पढ़ा कभी? तू म्यूट है। कुरान पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। जॉन मेरी बात सुनो। सूरह मरियम की, एक मिनट। ओए ओए पागल की बच्ची सुन, सूरह मरियम पागल की के बच्चे आयत पहले नंबर मेरी बात तो सुन लेना। 71 पागल के 72 बच्चे पढ़ा? मेरी बात सुन। सुन 71 पागल के 72 बच्चे पढ़ी? पहले मेरी नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। अपनी तूने बात जाना क्यों दबा निकाली जा। तुम लोग ने? ओके सुन, कुरान को पढ़ेगी पहले तू आज, फिर उसके बाद कोई बात करेगी। आगे कुरान पढ़ गई तो मैं तुझसे बात करूंगा, नहीं पढ़ी तो आज गालियां नहीं सुनूंगा, आज तुझे सुनाऊंगा बहुत ढेर सारी, ठीक है? पहले कुरान पढ़, तुझे कुरान दिखा रहा हूँ, पढ़ के मुझे बता क्या लिखा हुआ है। अगर तू पढ़ के बता कि क्या लिखा हुआ है तो जितनी देर कहेगी मैं तेरी बात सुनूंगा, वरना नहीं सुनूंगा। ये ले बगैर कुरान चैप्टर नंबर 19 की आयत नंबर 71 पढ़ के बता दे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन कर दे क्या लिखा हुआ है। 71 72 दो आयतें सिर्फ पढ़नी है तूने। देखते हैं तेरे में हिम्मत है कि नहीं है, पक्की मुसलमान है कि नहीं है, अल्लाह को भी उतना ही मानती जितना मोहम्मद को मानती है कि नहीं। अल्लाह का कुरान पढ़ के दिखा मुझे, चल। नबी के लिए तो जान देने को तैयार है ना। अल्लाह का कुरान पढ़ सकती है, कलाम जो अल्लाह ने लिखा है वो पढ़ सकती है, पढ़ के दिखा। चल सदफ सदफ बोल यार, आज के दिन में टाइम नहीं है ज्यादा मेरे पास, जल्दी कर, फिर आगे चलते हैं। सदफ कुरान की आयत पढ़ो यार जल्दी। साहिल मैं तुम्हें कुरान से साबित करता हूँ कि ये जहन्नम में जाएगी और अल्लाह इसके पिछवाड़े में जंजीर डालेगा और इसको आग पे भूनेगा। कुरान से साबित करता हूँ, किसी हदीस से नहीं। इसको कोई दुनिया का कोई भी आलम ले आया मेरे सामने। सदफ क्या हो गया? मैं साबित करती हूँ कुरान से सूरह मैंने नहीं कुछ साबित कराना तुझसे, मैं तेरी बात सदफ कर रहा हूँ। ये आयत अच्छा मैं बोलता हूँ एडम, मैं बोलता हूँ। सदफ तुम्हारे सामने कुरान की आयत है, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 71। इसको जरा पढ़ो और इसका ट्रांसलेशन पढ़ो सदफ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम। इसको बड़ा करो थोड़ा, इससे भी बड़ा करना है, ये लो, ये लो। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, यही है ना, यही वाली बोल रहे हो? हाँ यही वाली पढ़ो। हाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। क्या मतलब है? नीचे लेके आओ ना ट्रांसलेशन। नहीं छोड़ दे, क्या मतलब इसका? हर कोई इस पे वार होगा, हर कोई इस पे वार होगा। ये तुम्हारे रब का हतमन फैसला है। किस पे वार होगा? जहन्नम पे, तुम पे और तुम्हारी औरतों पे, और फिर लड़कियों पे। हमारी औरतों पे। अच्छा चलो ठीक है, हर कोई इस पे वार होगा एक्सेप्ट जिसको तुम्हारा रब निकाल ले। पढ़ो 72वीं आयत।
पढ़ो 72वीं आयत, मैंने कहा था 71 72 2 आयतें पढ़ो, क्या लिखा हुआ है सुम्मा नुमज्जी ये सुम्मा नुमज्जी अल्लज़ीना अत्तकू व नज़ुल ज़ालिमीना फीहा। अत्ता के सबको निकाल लेगा, अत्ता के अल्लाह सबको निकाल लेगा और सिर्फ जालिमों को बीच में रहने देगा। सो जहन्नम में तो हर शख्स ने जाना है। इस आयत में अल्लाह ने इवन अपने नबी को भी नहीं बख्शा। अल्लाह ने हतमी फैसला दिया है कि हर कोई जहन्नम में जाएगा। तुम्हारे स्कॉलर्स इसकी तफसीर करते हुए बोलते हैं कि नबी नहीं जाएंगे, बाकी सब जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने नबी को भी नहीं बख्शा। अल्लाह ने किसी नबी को नहीं बख्शा। कुरान की इन 2 आयतों के मुताबिक हर शख्स जहन्नम में वार होगा और फिर अल्लाह निकाल लेगा जो तकवे पे हैं और जालिमों को बीच में रहने देगा। तो जहन्नम में तो हर किसी ने जाना ही जाना है, इवन तुम्हारे नबियों ने भी जाना है। अगर मैं तफसीर पे ना जाऊं तो नबी के लिए नहीं है ये, और ना आम लोगों के लिए, ना आम मोमिन आम लोगों के लिए। ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ओए और कोई नहीं, वो और कोई नहीं, मिनकुम ऑफ यू, तुम में से, व इन और नहीं कोई तुम में से, एक्सेप्ट कि वो इसके अंदर जाए, वरीदुहा काना, ये जो है अला साबित कर दिया है, रब्बी का हातमन, एक ऐसा हतमन चीज अल्लाह ने कह दी है यहाँ पे कि कोई नहीं है तुम में से, कोई अब मैं तुम्हारी जाल साजी समझ गई ना जॉन, तुम नहीं वो लाते हो ना। इससे पहले वाली सूरतें पढ़ो कि अल्लाह कब फरमा रही है और ये किस जालिमों के लिए फरमा रहा है। तुम तो अपनी बात मेंशन कर रहे हो ना, इसमें हर कोई नहीं है, हर वो जालिम जाएगा जो जालिम होगा। ओए जालिमों को निकालेगा अल्लाह। वो अल्लाह कह रहा है कि जालिमों को बीच में रहने देगा। ये अगली आयत है, जालिमों को बीच में रहने देगा, बाकियों को निकाल लेगा। तो सब इसमें जा रहे हैं, जालिमों को बीच में रहने देगा। जा नबी भी रहा है साला, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो ईसा हो, कोई भी हो, ना पैगंबर जाएंगे ना ईमान वाले जाएंगे। और मैंने आपको कल भी अर्ज की थी ना, कुरान की आयत, ओए कुरान की आयत बता रहे हैं ना हम आपको, कुरान की वो लोग जाएंगे जिन्होंने दुनिया में जुल्म किए होंगे, भले वो ओए बकवास बंद, पागल की बच्ची, अभी तुझे पढ़ाया है, सारे जाएंगे, जालिमों को अंदर रहने देगा। मुझे बताओ इन 2 आयतों को पिछले किन कॉन्टेक्ट के साथ मिलाऊं, कितनी आयतें पीछे से पढ़ना शुरू करूं कि ये साबित हो जाए कि नबी नहीं जाएंगे? बोल, कितनी आयतें पीछे से पढ़ूं? कौन सी तफसीर पढ़ूं? तफसीर तिबरी पढ़ूं? नबियों के लिए नहीं है, नबी मासूम है, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर है। सदफ प्यारी सदफ, पहले बात सुनो। इस आयत में अल्लाह ने कहीं कहा है कि इसमें नबी नहीं जाएंगे? नहीं। सदफ, कभी भी आप अगर सदफ कुछ बोलते हो ना तो उसका रेफरेंस दोगे और बोलोगे तो सब मान भी लेंगे। आप सिर्फ ऐसी हवाई बात करोगे तो कोई भी नहीं मानेगा सदफ। अगर आप कह रहे हो कि इसमें नबी शामिल नहीं है या मुसलमान शामिल नहीं है, तो इसमें कहीं अल्लाह ने कहा है, ये बता दो इतना। तो ये बात सुनो ना, पैगंबर के लिए तो है ही नहीं ना। इसने लिखा यहाँ मेंशन किया कि अल्लाह ने, कहाँ लिखा है पैगंबर भी जाएंगे? माज़अल्लाह, वो दिखा दो, वो पैगंबर लिखा है कि पैगंबर भी जाएगा। यहाँ जब अल्लाह ने लिखा है सब जाएंगे, सब का क्या मतलब होता है? सब होता है, ठीक है, सारे जालिम जाएंगे, सारे एक मिनट निकालेगा। सदफ सुनो, सारे जालिम जाएंगे ऐसा आयत में नहीं लिखा है, बल्कि आयत ये कह रही है कि सब जाएंगे, बाद में उसमें से अल्लाह जालिम को रखेगा, बाकी लोग को उसमें से निकाल देगा। साहिल, मैं आपसे वही अर्ज कर रही हूँ, अगर अल्लाह कहता ना, जो कलमे पे देखो, जो कलमे पे जाएंगे लेकिन उन्होंने दुनिया में गुनाह किया होगा, जिना किया होगा, झूठ बोला होगा, चोरी चकारी, तो उनको उनके किए की सजा मिलेगी। मुसलमान भी दोज़ख में जाएंगे, ये उन लोगों के लिए जिक्र है, उन मुसलमानों के लिए बोला गया होगा, उन काफिरों के लिए जिन्होंने दुनिया में जुल्म ढाए होंगे। मैं एग्री करती हूँ ना, लेकिन हर कोई नहीं है, समझ रहे हो? इसमें ना हमारे पैगंबर हैं और अल्लाह के भेजे हुए प्रॉफिट, और ना जो है इसमें असहाबे कराम है, ना इसमें बुजुर्गाने दीन है, और ना इसमें वो मोमिन है जो अल्लाह के नाम पे मुकम्मल जिंदगी लिखा हुआ। ये तुम्हारी अपनी बकवास है, आयत में नहीं ऐसा लिखा हुआ। सदफ आयत में नहीं लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं ना, इसलिए बता। सदफ आयत में नहीं लिखा हुआ है। अब एक काम करो, आप जाओ, ये आयत जो है सूरह मरियम 19 की 71-72, आप अपने कोई आलिम के पास जाओ और बोलो कि जॉन साहब ने इस तरीके का क्लेम किया है इस आयत की बुनियाद पे। अगर
उसमें से मुसलमानों को या अंबिया को या रसूलों को या सहाबा को अगर निकालना है या औलिया को निकालना है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं इस आयत में से, उसका कोई हवाला लेके आओ। ठीक है सदफ, अभी आपके पास कोई दलील नहीं है, आप एक ही बात 10 बार बोलते जाओगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप दलील नहीं दोगे। सूरतुल अंबिया पढ़ लो, सूरतुल अंबिया पढ़ लो के पैगंबर का क्या आयत नंबर रुतबा बताओ। बनाया गया है। सूरह मोहम्मद पढ़ लो, सूरह पैगंबर पढ़ लो, अंबिया इस जो है, आयत में उसमें क्लियर लिखा गया है ना ओए कि क्लियर अंबिया ओए जो क्लियर ओए क्लियर ओए क्लियर 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 अल्लाह पाक का बच्चा था, कंट्राडिक्टरी बात क्यों करता है? लेट्स से सूरह अंबिया में लिखा भी हुआ है, हालांकि नहीं लिखा हुआ, इस तरीके से नहीं लिखा हुआ जो तुम बता रही हो, लेकिन वहां पे जाके तुम अपनी पोजीशन चेंज करना चाह रही हो इस वक्त यहाँ की। अगर मुझे एक्सप्लिसिटली बताओ कि वहां पे लिखा होगा कि पैगंबर और औलिया जहन्नम की आग को टच भी नहीं करेंगे, तो फिर मैं उसको मिलाऊंगा, नहीं तो यहां पे अल्लाह एक्सप्लिसिटली सबकी बात क्यों कर रहा है, ये बताओ। अच्छा देखो, मुझे अरबी याद नहीं आ रही, लेकिन मैं अल्लाह उर्दू पूछ क्यों तर्जुमा जाता है? कुरान से बता नहीं, रही अल्लाह हूँ। एक मैं पागल- अरबी अल्लाह पागल है, बात अल्लाह पागल है, एक कुरान तो नहीं, कहता है, बात अल्लाह दूसरा कहता है। तुम गुस्ताख हो, तुमने अल्लाह जहन्नम में जब जाना। एक दफा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि अल्लाह जब एक दफा एक बात करता है तो वहां पे क्यों नहीं लिखता इल्ला अंबिया व उलुल इल्म व सुहाबी व औलिया क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? यहां पे अल्लाह ने एब्सोल्युटली हर किसी के बारे में क्यों कहा है? अल्लाह पागल है, बेवकूफ है, जाहिल है, अनपढ़ है, नामाकूल है, गधा है, भुलक्कर है, उसको याद नहीं रहा उसने पहले क्या कहा था, या उसको याद नहीं रहा उसने बाद में क्या कहना है? अगर ऐसा नहीं है तो इस आयत में अल्लाह हर किसी के बारे में हतमी फैसला क्यों दे रहा है कि वो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, और फिर अल्लाह ने कहा, सदफ तुम इस पे तहकीक करके आना, ठीक है सदफ? ठीक है सदफ, तहकीक करके आना नेक्स्ट टाइम अपने आलिम से। देखो, और मैं कि तहकीक की जरूरत नहीं है ना, मैं आपको कुरान से ही बता रही हूँ ना। यही प्रॉब्लम है फिर सदफ, यही प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं और तुम बोल रहे हो मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। होगा तो बताओगी ना, नहीं है तो कैसे बता पाओगी? आपको जाग के हवाला लेके आना पड़ेगा, तब आप कोई हवाला दे सकती हो। ठीक है सदफ, आप नेक्स्ट टाइम एक बार अपने आलिम से चेक करके आना, ओके? और वो क्या कहते हैं उसको, जादू वाली हदीस भी चेक करके आना जो बताया था मैंने। ठीक है सदफ, अपने आलिम से वो जादू वाली हदीस चेक करके आना, ओके? मैं तुम्हें ना व्हाट्सअप कर रही हूँ, सही है? व्हाट्सअप ठीक है, कर रही हूँ ओके। वीडियो, वो देखो, ठीक। अपनी गुमराही से निकलने की कोशिश करो। चलेगा, भेज नंबर बता देना, मैं दो, चेक कर लूंगा कौन सा बाद है? में। अरे इधर WhatsApp स्क्रीन का पे नंबर बताओ। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, देख लेना, ठीक है? चलो ओके, सही है। बहरहाल इसने झूठ बोला है, जो भी बोला है, सिर्फ गुनाहगार ही जाएंगे, ये सारे उन जहन्नुमी। अल्लाह पागल का बच्चा है ना, झूठ बोलता है, अरे जाने दे। बेवकूफ है अल्लाह, पागल है अल्लाह, जाहिल है अल्लाह, वो कुछ और बोलता है तो मैं कुछ और समझ देता। ठीक है।